How are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education, and today in this session we are going to see a chapter number 2. Okay, that is the weather forecast swindle. But before that, as we all know that what we are learning first before starting any poem or a chapter? Yes, we are learning the vocabulary words of that chapter or a poem. And why we are learning that? Because it gives the clear idea of that word. It gives the clear meaning of that word. And apart from that, it also improves our skills such as reading, listening, speaking, writing. All these skills are improved by learning vocabulary words. So, for that reason, we are learning vocabulary. Okay? So, let's start with our vocabulary section first. Our first vocabulary is weather forecast. Weather forecast means what? A prediction of the weather in a particular area based on an analysis. Means that आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, यानी कि आप अनुमान लगा रहे हो वेदर के बारे में कि यस आज बारिश होने वाली है शायद. सो आपने एक प्रिडिक्शन किया, वेदर फोरकास्ट किया. फोरकास्ट मीन्स कि आपने एक प्रिडिक्शन लगा कि ये एरिया में आज बारिश होगी. आप कुछ एनालिसिस करते हो पूरा पहले वेदर के बेसिस पे, और फिर आप एनालिसिस करने के बाद एक अनुमान लगाते हो कि यस आज एटमॉस्फेयर इतना रहेगा, आज बारिश नहीं होगी, आज सनलाइट बहुत ज़्यादा होगी, आज ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी. ये सब वेदर फोरकास्टिंग है, राइट? ओके, so all this comes under weather forecast. Weather forecast means a person who gives you the prediction about the weather, that what is going to happen today about a particular area, or that based on the analysis that is known as weather forecasting. Okay, then comes swindle. Swindle means what? Swindle means a means of deceiving or cheating someone. Means of deceiving or cheating someone. मीन्स यानी कि किसी के पर चीट करना, किसी को चीट करना, धोखा देना. दैट इज चीटिंग समवन, swindle. Then comes thunderstorm. Thunderstorm means what? यानी कि बहुत तेज तूफान के साथ बारिश हो रही हो, एकदम ज्यादा पवन, ज्यादा हवा हो और उस बारिश भी हो रही हो, बिजली हो रही हो, राइट? लाइट्स, राइट? तो that is known as thunderstorm. Then comes next, that is fraud. Something that is meant to deceive or cheat others. यानी कि किसी को चीट करना, यानी कि आप किसी को रुपीस देते हो, राइट? और वो रुपीस लेके चला जाता है, और कोई धोखे से आपको बोल दे कि मैं आपको ये कर दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दो, और फिर वो काम भी नहीं होते और वो पैसे लेके चले जाते. दैट मीन्स ही इज द फ्रॉड. वो फ्रॉड है, यानी कि झूठा, चीटर है. Okay? Then comes wagonnets. Wagonnets means four-wheeled horse drawn vehicle that are typically open. यानी कि हमारी जो हॉर्स कार्ट रहती है, राइट? तो उसका जो वो कार्ट है, हॉर्स चलाने के बाद उसके पीछे जो कार्ट रहती है, राइट? हॉर्स कार्ट. तो हॉर्स ड्रॉन के लिए जो कार्ट वो है वो पैक नहीं रहती, जो ओपन कार्ट होती है, राइट? जो खुली रहती है. So that is known as wagonnets, and you can also see in the picture how does the wagonnets look. Then comes the next, that is coaches. Coaches means closed horse drawn carriages. जैसे कि मैंने wagonnets के बारे में बोला कि वो open रहते हैं, वैसे ही coaches जो है that is closed, वो closed रहते हैं. Closed horse drawn carriages. Okay, and wagonnets are the open and coaches are the closed. Okay, so now our next vocabulary is stirred. Stirred over here means moved the wood lightly in order to keep the fire burning brightly. यानी कि stirred, यहाँ पे stirred का मीनिंग हमें क्या बताया गया है कि stirred means move slightly, ऐसे ही धीरे धीरे हिलना. लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है? That is moved the wood lightly
यानी कि जो वुड है उसे लाइटली मूव कर, वुड जब हम बॉन फायर करते हैं राइट, तो उस समय हम लाइक जो हमारा वुड है उसे थोड़ी थोड़ी देर हिला, लाइक वी चेंज द पोजीशन ऑफ द वुड बिकॉज आगे का वुड जो है वो बर्न हो गया, सो वी चेंज द पोजीशन ऑफ, वी मूव दैट स्लाइटली, सो दैट इज नोन एज ओवर हियर इट इज सेड एज स्टर्ड. Then comes landlady. Landlady means a woman who rents out a land or a building. यानी कि जो वुमेन है वो ही जो हाउसेज है वो किराए पर और रेंट पर जो देती है लैंड और बिल्डिंग कोई भी चीज, such kind of a women are known as landlady. Then comes drenched means thoroughly wet, एकदम गीला हुआ राइट, गीला हो गया, that is thoroughly wet, that is known as drenched. Then comes flimsy. Flimsy means very light and thin, एकदम हल्का और एकदम thin, that is known as flimsy. Then comes barometer. Barometer हम कब यूज करते हैं? When someone is unable to hear, जब कोई person सुन नहीं पाता है, at that time we are using a barometer, right? जब कोई भी पर्सन जिसको सुनने में तकलीफ होती है, they are using a barometer, an instrument used to determine the weather, and even barometer are also using to as an instrument to determine the weather, कि weather कैसा है वो determine करने के लिए the people are using barometer. Then comes the next, that is misleading, giving the wrong idea or impression. Misleading means आप कोई भी चीज जो सही तरीके में जा रही है और आप किसी और को कुछ गलत तरीके से बता रहे हो राइट, तो वो उस इंसान पर क्या गलत इंप्रेशन पड़ेगी, सो दैट द अदर पर्सन इज मिसलीडिंग. आपने बोला है कि आप ये करके आओ और आप दूसरों को कुछ और ही बोल रहे हो, दैट मीन्स यू आर मिसलीडिंग द कम्युनिकेशन, आप मिसलीड कर रहे हो, कोई गलत चीज बता रहे हो. Okay, so these all are our vocabulary words. Now let's have a quick recap of all the vocabulary words. Weather forecast, a prediction of the weather in a particular area based on an analysis. Swindle, a means of deceiving or cheating someone. Thunderstorm means when a heavy storm came with rain and lightning, that is known as a storm. Then fraud, something that is meant to deceive or cheat others. Wagonnets, four-wheeled horse-drawn carriage vehicles that are typically open. Then coaches, closed horse-drawn carriages. Then stirred, over here, moved the wood lightly in order to keep the fire burning brightly. Then landlady, a woman who rents out a land or a building. Drenched, thoroughly wet. Flimsy, very light and thin. Barometer, an instrument used to determine the weather. And misleading means giving the wrong idea or impression. So these are all our vocabulary words. I hope that you have understood all the vocabulary words well. So now let's know something about the author of this chapter, कि ये जो chapter है वो किसने लिखा है. So this chapter is written by Jerome K. Jerome, right? K means clap. It's a name. So Jerome K. Jerome, born in 1859 and he died in the year 1927, was a famous English writer. Jerome K. Jerome was a famous English writer, especially well known for his humorous writing. Humor writing के बारे में बहुत famous था, humorous. His Three Men in a Boat is considered his masterpiece. कि उसकी जो Three Men in a Boat है वो उसकी बेस्ट वो बुक कहलाती थी. Among his other notable writings, उसकी दूसरी बुक्स के कंपैरिजन में Three Men in a Boat were the best. His other books include essay collections like Idle Thoughts of an Idle Fellow and Second Thoughts of an Idle Fellow. He published his autobiography, My Life and Times, in 1926.
ये सारी चीज़ें वो उसने लिखी है। एंड दिस चैप्टर इज टेकन, ये जो हमारा जो छोटा सा एक स्टोरी जो चैप्टर है वो भी थ्री मैन इन अ बोट, जो उसकी जो फेमस बुक है उसमें से ही एक पार्ट लिया गया है, जो हमारा चैप्टर है दैट इज वेदर फोरकास्टिंग इन वेदर फोरकास्ट स्विंडल, राइट। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द स्टोरी अबाउट, ये जो स्टोरी है वो कौन से बेसिस पर है। लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक थ्री मैन इन अ बोट, एज आई टोल्ड यू। The humorous episode is about how the weather forecast is such an unreliable thing. ये बहुत ही ह्यूमरस नॉनसेंस एपिसोड है कि वेदर फोरकास्ट इज सच अ अनरिलायबल थिंग, कि वेदर फोरकास्ट जिस किसी ने भी किया है वो हमें उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आप सुबह वेदर फोरकास्ट देख लो कि आज का वेदर कैसा रहेगा और उसमें बोला गया कि आज बहुत बारिश होने वाली है और पूरा दिन आप घर पे रहो कि बारिश होगी तो मेरा काम सब रुक जाएगा, इससे अलावा कि मैं घर पर ही रहूँ, और आप घर पर ही रहते हो और बारिश ही नहीं होती। So it is unreliable thing. Over here it is saying it is a narration of how the writer spoiled the speaker's holiday plan. और यहाँ पे एक नरेशन, यहाँ पे जो स्टोरी है उसमें बताया गया है कि हाउ द वेदर, कि जो वेदर है राइट, वेदर का वेदर फोरकास्टिंग को देखकर ये जो हमारा हॉलीडे पे जाने का ये स्पीकर, यहाँ पे जो स्पीकर बोल रहा है उसका हॉलीडे जाने का प्लान कैसे खराब हो जाता है राइट, ड्यू टू दिस वेदर फोरकास्ट। So this is just the brief idea of the story. Now let's start with our story, that is the weather forecast swindle. George got hold of the paper and read out to us the news and the weather forecast, which predicted rain, cold, wet to fine with occasional thunderstorms. Yani ki there is a boy over here whose name is George. So George got hold the newspaper, वो न्यूज़पेपर होल्ड करके वो पढ़ रहा था न्यूज़, एंड वो वेदर फोरकास्ट पे रीड कर रहा था कि आज का वेदर कैसा होने वाला है। सो उसमें क्या लिखा गया था, विच प्रिडिक्टेड बारिश होने वाली है, रेन ठंड भी पड़ने वाली है, कोल्ड वेट टू फाइन सब कुछ गीला हो जाएगा, विथ ओकेजनल थंडरस्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म बिजली कड़कने वाली है, तेज तूफान आएगा और सब कुछ उसमें लिखा गया था, ऐसा सब कुछ राइट। देन कम्स I do think that of all the silly, irritating foolishness by which we are troubled, this weather forecast fraud is the most annoying. It forecasts exactly what happened yesterday or the day before and exactly the opposite of what is going to happen today. यानी कि वो बोल रहा है कि I do think, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो weather forecasting वो एकदम सिली है, उसको कुछ ध्यान में नहीं, वो एकदम फुलिशनेस इरिटेटिंग वाली चीज़ है कि वो अगर उसे सोचेंगे तो हम मुसीबत में भी आ सकते हैं, और वो फ्रॉड है, वो एक चीटिंग की तरह है कि वो हमें हमारे सारे प्लान्स वो खराब कर देंगे राइट, जो आपको बहुत परेशान करेगा। वेदर फोरकास्टिंग इज जस्ट अ फुलिश थिंग। इट फोरकास्ट, वो वेदर फोरकास्टिंग जो हमें बताते हैं वो क्या बताते हैं, वो कौन से बेसिस पर, कि कल क्या हुआ था और उसके कल जो था उसके दिन पहले क्या हुआ था, अ डे बिफोर यस्टरडे क्या हुआ था, उस बेसिस पर वो आज का फोरकास्ट बताते हैं। और अगर उसने आज का फोरकास्ट बताया तो वो उनसे एग्जैक्टली अपोजिट ही होने वाला है, ऐसा ये जॉर्ज बोल रहा है। So I remember a holiday of mine being completely ruined one late autumn by our paying attention to the weather report of the local newspaper. कि मुझे याद है कि मेरा जो हॉलीडे था, मैंने एक हॉलीडे प्लान किया था, वो कम्प्लीटली तुमसे वो बहुत ख़राब हो गया था। एक ऑटम जब आया था तब मैंने हॉलीडे प्लान किया था और वो एकदम से ख़राब हो गया था, विच वॉज टोटली ruined. Paying attention to the weather report, जब मैंने ये वेदर फोरकास्ट पढ़ा, वेदर रिपोर्ट पढ़ा और ये सोचकर मैंने अपना पूरा का पूरा हॉलीडे प्लान कैंसिल कर दिया था। ये जो वेदर फोरकास्ट था वो लोकल न्यूज़पेपर में था, वो पढ़ के मैंने पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया। सो इट इज़ टोटली visiting. So now heavy showers with thunderstorm may be expected today. It would say on Monday, and so we would give up our picnic and stay indoors all day waiting for the rain.
and people would pass the house going off in wagons and coaches as merry as they could be, the sun shining out and not a cloud to be seen. और वो क्या बोल रहे हैं कि हैवी शावर्स, बहुत ही ज़्यादा बारिश, हैवी शावर होगा और थंडरस्टॉर्म के साथ, वो भी बिजली के साथ. मे बी एक्सपेक्टेड टुडे, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद हो, लेकिन इट वुड से ऑन मंडे, शायद वो मंडे को हो जाए. एंड सो वी वुड गिव अप आवर पिकनिक, और उसके लिए हम हमारी पिकनिक कैंसिल कर दें एंड स्टे इंडोर्स ऑल डे, और सारा दिन पूरा दिन घर पर ही रहे, बारिश की वेट करके. एंड जो भी पीपल है वो हमारे यहाँ के घर के पास से जो पास हो रहे हैं, पास राइट ऑन द हॉर्स, दे आर गोइंग ऑफ इन वैगन्स एंड कोचेस, उसमें जा रहे हैं एज मैरी एज दे कुड बी, हैप्पी होके, बिकॉज द सन शाइनिंग आउट. बाहर तो एकदम सन जो है वो एकदम ब्राइटली शाइन कर रहा है, और हमें एक भी क्लाउड भी नहीं दिखाई दे रहा कि बारिश होगी. नॉट अ क्लाउड वी कैन सी ओवर देयर. सो we said as we stood looking out at them through the window, won't they come home soaked? तो क्या हम उसकी विंडो पे राह देखते ही खड़े रहेंगे, तो क्या वो हमें गीला नहीं करेगा? अगर हम ना भी जाए वो तो भी बारिश आने वाली है, जाएंगे तो भी बारिश आने वाली है. So and we laughed to think how wet they were going to get. और ये सोचकर हम सोच रहे कि जो बाहर लोग जा रहे हैं क्या वो गीले नहीं हो जाएंगे ड्यू टू रेन, और वो गीले हो जाएंगे, ये सोचकर हमें हंसी आ रही है. एंड कैम बेक एंड स्टर्ड द फायर, और फिर हम घर आ गए और बॉन फायर, आग जला के वहाँ पे बैठ गए. एंड गॉट आवर बुक्स साथ में ले ली. बाय 12 o'clock, 12 बजे तक, विद द सन पोरिंग इनटू द रूम, कि सन की जो लाइट वो एकदम रूम में आने लगी. द हीट बिकेम क्वाइट अनबेरेबल, और इतनी गर्मी हो रही थी कि हम सहन भी ना कर पाते, इतनी गर्मी हो रही थी. And we wondered when those heavy showers and occasional thunderstorm were going to begin. और हम सोच रहे थे कि पेपर में तो लिखा था कि heavy shower rain होगा, thunderstorm होगा, तो वो कब होगा? Right? It was now time to going to begin. They'll come in the afternoon, कि वो सब कुछ afternoon, दोपहर में होने वाला है. You'll find, we said to each other, तुम देखोगे कि हमने जो बोला है वो सच होगा. Oh, won't those people get wet? How amusing that's going to be. कि बाहर जो लोग जा रहे हैं, क्या वो वेट नहीं हो जाएंगे? तो वो कितना amusing होगा, right? So at 1 o'clock, 1 बजा, the landlady would come in to ask if we weren't going out, as it seemed such a lovely day. कि ये जो लोग जॉर्ज और वो लोग जो मकान में रह रहे थे हाउस में, वहाँ की जो लैंड लेडी थी, यानी कि जिसका जो घर था उसने जो रेंट पे दिया था, राइट, वो यहाँ इन लोगों को पूछने के बाहर कितना अच्छा दिन है, तो क्या आप बाहर नहीं जा रहे हो, आपको बाहर नहीं जाना है, सब लोग बाहर घूम रहे हैं तो आपको नहीं जाना है. नो नो, वी रिप्लाइड विथ अ नोइंग लाफ, कि हमने मना कर दिया, नो नो वी डोंट वांट टू लाफ. और वो हम मन में मुस्कुरा रहे, क्योंकि यस, हमें पता है कि आज बारिश होने वाली है, क्यों, इसलिए हमें बाहर नहीं जाना है, लेकिन सब लोगों को जाने तो वो ही गीले हो जाएंगे. वो ऐसे सोच के मन में हंस रहे हैं. नॉट वी डोंट मीन टू गेट वेट, नो नो, कि हमें गीला नहीं होना है, सॉरी, नो नो, वी डोंट वांट टू गो आउट. एंड व्हेन द आफ्टरनून नियरली गॉन, और जब दोपहर भी चली गई, राइट, अब इवनिंग टाइम हो गया, एंड स्टिल देयर वाज नो साइन ऑफ रेन, और अभी तक एक भी बारिश की एक साइन, की हमें ऐसा लगे कि नहीं बारिश होगी, ऐसा कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा था. We tried to cheer ourselves up with the idea that it would come down all at once. कि हम अपने ही आप को cheer कर रहे हैं कि भले ऐसा लग रहा हो, लेकिन बारिश तो आएगी ही, क्योंकि अब तो पूरा दिन चला गया, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई. Just as the couple had started for home and were out of the reach of any shelter, and then they would thus get more drenched than ever. कि अभी बाहर भी जो लोग घूम रहे उसे घूमने, तो अचानक से जब बारिश होगी तब वो ही सारे लोग एकदम भीग जाएंगे. But not a drop ever fell. कि लेकिन एक भी बारिश की बूंद वहाँ पे नहीं हुई. बाहर तो सनलाइट ही सनलाइट थी.
and it finished a grand day. और उससे वो ये पूरा दिन खत्म हो गया, लेकिन बारिश तो हुई ही नहीं. And a lovely night after it. So the next morning we would read that it was going to be a warm, fine day, much heat, and we would dress ourselves in a flimsy things. कि अब नेक्स्ट डे जो वेदर फोरकास्ट हुआ उसमें क्या लिखा गया था कि आज जो है वो एकदम अच्छा सा दिन जाने वाला है, कि एकदम अच्छा दिन होगा और बहुत गर्मी पड़ेगी, राइट. एंड वी आर गोइंग टू ड्रेस इन अ फ्लिम्सी थिंग्स. फ्लिम्सी यानी कि बहुत ही लाइट और पतले कपड़े पहनने वाले, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ेगी इसलिए. एंड हाफ एन आवर आफ्टर वी हैड स्टार्टेड, और उसके दिन पहले क्या बोला था कि रेन होगी, और उस दिन रेन नहीं हुआ. उस दिन बहुत ही सन इट शाइन्स ब्राइटली, राइट, और बहुत ही गर्मी हुई. और एग्जैक्टली जो पिच अगले दिन हुआ वही नेक्स्ट डे वेदर फोरकास्ट में बोला गया. तो जैसा वो जॉर्ज ने बोला था वैसे ही हुआ, राइट. और उसके आधे घंटे में ही वी हैड स्टार्टेड, इट वुड स्टार्टेड टू रेन हार्ड, और उसके आधे घंटे में ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई. एंड bitterly cold wind would spring up, और पवन तेज हवा चलने लगी. एंड both would keep on steadily for the whole day, और वो एक ही जगह पर पूरा दिन वहाँ पे रहे. एंड we would come home with cold and go to bed, और फिर हम बाहर गए थे और वहाँ पे भी हमें पूरा दिन एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ा. और जब हम घर आए तो फिर ठंड की वजह से हम डायरेक्टली बेड पे जाके सो गए. सो द वेदर इज अ थिंग दैट इज बियॉन्ड मी ऑल टुगेदर. ये वेदर ऐसी चीज़ है जो मेरे बस की बात नहीं, वो और भी कुछ ज़्यादा ही है. आई नेवर कैन अंडरस्टैंड इट. मैं उसे कभी नहीं समझ पाऊंगा. आप वेदर फोरकास्टिंग इज सच अ थिंग, आपको उसके बारे में स्टडी करना पड़ता है. इट गिव्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू अंडरस्टैंड द वेदर फोरकास्टिंग. एंड द बैरोमीटर इज यूजलेस, कि जो बैरोमीटर जो हमें डायरेक्शन बताता है, राइट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वेदर के बारे में कि क्या होगा. एंड दैट इज ऑल्सो यूजलेस, वो भी एकदम कोई काम का नहीं है. सो इट इज एज मिसलीडिंग एज द न्यूज़पेपर फोरकास्ट, और वो भी हमें एकदम गलत ही बात बताता है जैसा कि न्यूज़पेपर वाले बताते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट short extract taken from Three Men in a Boat, and we can say a story also, the weather forecast swindle. So I hope that you all understand it well. आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now let's have a quick recap of the story with the help of the video. The weather forecast swindle. George and his friends had planned to go on a picnic when the newspaper predicted heavy showers with thunderstorms. They cancelled the plan and decided to stay indoors, waiting for the rain. The friends kept waiting for the showers and thunderstorms, but the day kept getting hotter by the hour. After noon, their landlady came to ask if they were going out in that pleasant weather. All three of them refused, as if they knew that it was going to rain. They hoped and waited, but not a drop fell. The friends had cancelled their picnic plan in vain. Okay, so I hope that you have seen the story and you have recalled the story also with the help of the video. So now, as a part of a revision, I'll give you some of the questions in the description section. And if you know the answer, then you can answer me in the comment section. And still, if you have any doubt, then you can go through the video again, or else you can ask me in the comment section. Okay? So this is all about today's session, and I hope that you have enjoyed this session well. So until we meet again, till then, bye everyone. Thank you and take good care of yourself.